Welcome back. Here's a story that is going to shock you. And in fact, any parent who has a school-going child, especially a daughter. Discipline is said to be a part of education and an integral part of character building as well. But what if punishment ends up humiliating the students in the name of disciplining them? Why are we saying this? Because the story that we are bringing you now is an example of that happening in real life. 2 days ago, at a private school in Jharkhand, as a punishment, close to 100 female students were allegedly ordered to remove their shirts by their own principal, who, by the way, also happens to be a woman. You heard it right. On January 9th, close to 100 students of class 10th at a private school were celebrating Pen Day, which is an annual celebration of the students on the last day of their exams. Celebrations reportedly include students wishing each other by signing and writing good wishes on their shirts, which are a part of their school uniform. Now, it is this act that reportedly angered the school principal, who allegedly punished the students by asking them to remove their shirts. Sources say that students were sent back to their homes only wearing their blazers. This enraged the students as well as their parents, who ended up thronging the school and confronting the school administration. Angry over the incident and indignant, parents demanded answers from the principal and asked how could such harsh action be taken against their kids. उन्होंने बोला हम लोग एक्शन लेंगे, ये इलीगल था। बच्चे पहली बात है, यहाँ तो ऐसा कोई गलती था नहीं, और अगर बच्ची गलती भी करते हैं तो भी आप शर्ट कपड़े उतरवाने का राइट किसी को नहीं। यहाँ तक कि खुद के पेरेंट्स को नहीं है कि अगर बच्चे इजाज़त नहीं दे रहे तो आप कपड़े उतार दें। तो ये तो एक स्कूल की टीचर है, वो भी मेल स्टाफ के सामने, और यहाँ तक कि आप लोग बच्चे के बिना परमिशन के बॉडी टच तक कर दिए। बच्चे बोल रहे हैं कि हम लोग को कन्वीनियंट फील नहीं हो रहा, आप लोग ऐसा मत कीजिए, उसके बाद भी आप लोग कर रहे हैं, तो ये तो इलीगल है। स्कूल में पेन डे था, पेन डे में बच्चे लोग कपड़े में लिख रहे थे। अगर स्कूल में कोई ऑब्जेक्शन अगर होता तो पेरेंट्स को कॉल किया जाना चाहिए था। बच्चे का शर्ट खुलवा लिया गया, उन्हें ये बोला गया कि आप लोग ऐसे ही घर जाओ। तो हमारी बच्चे की इज्जत नहीं है क्या? कैसे बच्चे लोग आए, किस सहम से आए, हम लोग देखे, हम लोग जानते हैं। और शर्ट खुलने के बाद अगर प्रिंसिपल बोलता है कि पेरेंट्स को बुलाइए, क्या हम अपने बच्चों को देख पाएंगे उस तरह से स्कूल जाने के बाद? रिपोर्ट में वो लास्ट डे में पेन डे का खेलते हैं बच्चे लोग, शर्ट में लिखते हैं, तो पेन डे का कार्यक्रम बच्चों ने किया। उसके बाद प्रिंसिपल महोदया का आदेश आया कि भाई जो बच्चा पेन डे किया उसका शर्ट उतरवा लीजिए। अब बताइए 10 क्लास में पढ़ने वाली 16 वर्ष की छात्रा है, उसका आप शर्ट उतरवा लिए और बोलते हैं ऐसे घर चले जाइए। आपको शर्म नाम का चीज नहीं है क्या? कोई बहुत लोग टेम्पो से जाती है, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाती है, क्या उन लोगों का परिस्थिति होगा समझिए। अगर संवेदना है ना तो आपको रिजाइन कर देना चाहिए अपने पद से, कि आपने जस्टिस नहीं किया अपने पद को। When confronted, the principal, however, outrightly denied all the charges that were leveled against her. She says that she's never asked the students to remove their shirts and that the allegations against her were totally baseless. I did not do all those things, and neither did I ask them to open their shirt and go. I told them go in proper uniform only, and not to linger on here. That's all. What I have to tell you, I said that I have not told them to open their shirts and go. Soon, district administration officials rushed to the school as tensions grew. Dhanbad, the district collectorate, met the parents and assured a probe over the incident and action. मैटर आप लोगों को संज्ञान में हो गई। हम लोगों ने अभी गार्जियन से और कुछ बच्चियों से भी बातचीत करी, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है। इसमें हमारे द्वारा एक जांच कमेटी बनाई गई है, और जो भी उनकी फाइंडिंग्स होंगी उसके आधार पे हम लोग इसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे। हमारी टीम गई है वहाँ पर जांच करने के लिए। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो इसमें FIR भी दर्ज करी जाएगी, कि हम लोग स्कूल मैनेजमेंट से बात भी करेंगे। एट द सेम टाइम जो उसमें कानूनी कार्रवाई होगी वो भी करी जाएगी, क्योंकि इस तरीके का व्यवहार कहीं पर किसी भी विद्यालय प्रबंधन के द्वारा ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। अभी हम लोग जांच कर रहे हैं और CCTV को भी खंगाल रहे हैं। जांच के उपरांत इस संदर्भ में आप लोग को बताया जाएगा। यहाँ के बच्चियाँ या पेरेंट्स के द्वारा बताया गया है, उस आलोक में हम लोग पूरी टीम जांच करने के लिए पहुँचे हैं। हम लोग जांच कर रहे हैं, CCTV को भी खंगाला जा रहा है। जांच के उपरांत जो भी निकल कर आएगा आप लोगों को बताया जाएगा। This case has elicited sharp political reactions, with BJP accusing Jharkhand government of trying to cover up the incident
bringing religion into the mix. ये बेहद शॉकिंग, शर्मसार करने वाला, उसकी जितनी निंदा की जाए ये कम है। ये प्रिंसिपल को अभी तक सरकार ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? डीसी ने कमेटी का गठन किया, ये आई वॉश है। 80 बेटियों के पिताओं और बेटियों ने जाकर डिप्टी कमिश्नर से शिकायत की, लेकिन ये सरकार कवर अप ऑपरेशन करने में लगी है। अब सोचिए नाबालिग बेटियों के मस्तिष्क पर क्या बीता होगा, कितना ट्रॉमा इन्होंने झेला होगा जब उनको शर्ट उतारने के लिए मेल टीचर्स के सामने मजबूर किया गया होगा। और जिस प्रिंसिपल के कहने पर यह किया गया वो अभी तक बाहर क्यों है? अविलंब प्रिंसिपल की गिरफ्तारी हो और कठोरतम कार्रवाई हो। That's all we could pack for you in this edition of News Hour. A special stay tuned for all the day's latest updates on the other side. The News Hour Special Edition.